Hello all. So now let's start with the topic amalgamation unit 2. So before getting into the topic, let's see few important theory questions. So there is a chance of asking theory again, one theory and one problem. So if they are asking theory, let's see what type of questions they are asking. So these are few important theory questions from Unit 2, where write journal entries to be recorded in the books of selling company on its absorption by other company. So they are just simply asking you to write journal entries. So there are some 13 to 14, 12 to 13 journal entries. That journal entries you need to write. And then difference between amalgamation in nature of purchase and amalgamation in nature of merging. So this can be asked in the form of differences, or they can be asked separately also. And then we are having difference between pooling of interest method and purchase consideration method. Again, these things also either combinedly or separately they are asking. And then we are having purchase consideration, various methods of calculating purchase consideration. So if you learn all these questions, it will be easy for you to attempt the same questions if they are asking in short also. So you can cover 12 marks long answer and 4 marks short answer if you are very perfect with these things. Upon that, when you are reading journal entries, it is somehow helping you to solve the problem also. Right. So reading journal entries means you are able to solve the problem. So it is helping you in both the ways. And if they are asking problems, you can see here problems regarding amalgamation, where we are having two type of problems. Here we have seen, right, amalgamation in nature of purchase and in the nature of merger. So for this there are problems. Okay, so here you need to write journal entries. Later you will get some realization account. According to that, you need to rewrite the existing balance sheet. The same thing carries on with both purchase consideration and merging. So these are few theory and problems which are important from unit 2. So let's get into the theory. So first, the term amalgamation is used when two or more companies go into liquidation and a new company is formed. ये सब समझने से पहले हम पढ़ेंगे मर्जिंग क्या है. सो इफ़ यू रिमेंबर, मर्जिंग मीन्स टू एग्जिस्टिंग कंपनीज कमिंग टुगेदर, राइट. सपोज you think there is a company called A and there is a company called B. Now they both want to come together and do their business as they are forming a new company called AB Limited. You think they started like this: A is a separate company, no, B is a separate company. Both came together, they started a new company called AB company. ये क्या है अपना मर्जिंग. सेम मर्जिंग के जैसे और एक है वो अपना अमालगमेशन. लेकिन डिफरेंस क्या है? अमालगमेशन में भी दो कंपनीज, टू और मोर कंपनीज आर कमिंग टुगेदर, बट आफ्टर गोइंग इनटू लिक्विडेशन. तो हम यूनिट 1 में पढ़े ना लिक्विडेशन. लिक्विडेशन का मतलब क्या? वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, क्लोजिंग ऑफ ए कंपनी. तो अमालगमेशन में क्या हो रहा? दो या मोर कंपनीज, लाइक टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट होने के बाद, मतलब वाइंड अप होने के बाद एक नया कंपनी फॉर्म होता है, उसको हम अमालगमेशन बोलते हैं, right. And then there is another term called absorption, is used when one or more companies go into liquidation and another existing company taken over business of the liquidated company or companies. So now what happening in absorption, right? Suppose you think A and B both winded up, वाइंडिंग अप हो गया मतलब लिक्विडेट हो गए. So now a new company called C came into the market and now that C company is taking over A and B. पहले क्या हुआ? टू कंपनीज क्लोज होके नया कंपनी फॉर्म हुआ. अब क्या हुआ? टू कंपनीज क्लोज होके एक एग्जिस्टिंग कंपनी आके दो कंपनीज को एक्वायर कर ले रहा, कंप्लीटली कंट्रोल ले ले रहा. ये हुआ अपना एब्जॉर्प्शन, राइट. अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन. नाउ वाई दिस एब्जॉर्प्शन और अमालगमेशन हैपन्स, क्यों होता है? ये बिजनेस को क्लोज करने की सिचुएशन क्यों आता? समझो कंपनी कुछ लॉसेस में चल रहा या कुछ डेट्स पे नहीं करे, तो वाइंडिंग अप में हम ऑलरेडी पढ़े रीजंस, राइट. सो वाइंडिंग अप हैपन्स व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स. Now a single company running its operations is different, but when two companies coming together, then it will be easy for the company to run its operations smoothly. So that is why this amalgamation or absorption is happening. So there is another term called reconstruction. Now what is a reconstruction? Simply it is reorganizing, right. What you are doing, you are winding up, again you are starting, matlab you are
रीवैल्यूएटिंग योर असेट्स, राइट। अगेन फिर से कैपिटल लेकर आ रहे या कैपिटल को रिड्यूस कर रहे, कुछ ना कुछ कर रहे, कैपिटल कंपनी का स्ट्रक्चर तो बदल, यू आर चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। एंड देन रिकंस्ट्रक्शन मे बी either external reconstruction or internal reconstruction. So this reorganization can be happen either externally or internally. Now, in case of external reconstruction, an existing company is liquidated. The assets and liabilities of the liquidated company are revalued and transferred to the new company which is specifically incorporated for the purpose. So now क्या हो रहा है external में, completely all assets and liabilities we are revaluating it and we are transferring it to the new company, right? So as it the example here, A and B wind up हुए, A and B का assets और liabilities revaluate करते, revaluate करके किसको दे दे रहे, C को दे दे रहे, the existing company, the taken over company को we are giving it. That is a external reconstruction. And then we are having internal reconstruction, right? The company will not be liquidated. So external reconstruction, we are completely liquidating the company, we are completely winding up the company. But in internal reconstruction, you are not liquidating company, but you are reducing the capital of the company. Company को reduce करके you are paying off your fictitious assets and losses. By that you are reorganizing it. So in external reconstruction you are completely liquidating it. In internal reconstruction you are not liquidating, you are just reducing the capital. So now this chapter is regarding external reconstruction because here we are liquidating company. लिक्विडेट होने के बाद या तो मर्जिंग हो रहा, नहीं तो एक नया कंपनी आके परचेज कर रहा, मतलब मर्जिंग या परचेज है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में. एंड अगेन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नाउ Institute of Chartered Accountants says Accounting Standard AS 14 talks about this amalgamation, and the treatment for amalgamation and absorption is similar, right? This thing is being said in AS 14, Accounting Standard 14. So amalgamation and absorption ki there is same type of treatment. Now for the purpose of accounting there are two types of amalgamation. Now amalgamation में two types है, क्या है वो अपना, merging और purchase, merging and purchase. What is merging? Two companies coming together. What is purchase? टू और मोर कंपनीज वाइंड अप होने के बाद एक नया कंपनी आके उसको अक्वायर कर लेता, वो हो अपना परचेज. मतलब मर्जिंग में कुछ परचेज कंसिडरेशन नहीं रहता, मतलब देर इज नो समथिंग कॉल्ड नो बायर एंड सेलर, बट इन परचेज देर इज बायर एंड सेलर, देर इज सेलिंग कंपनी, देर इज बाइंग कंपनी. अमालगमेशन में ऐसा बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी नहीं रहता, राइट. सो नाउ लेट्स सी व्हाट मेक्स मर्ज. Transfer of assets and liabilities to the transferee company. Now, as the example, there are two companies called A and B. Suppose you think A is purchasing B. A company is purchasing B. Now, who is B? B is transferor, right? कौन है? सेलिंग कंपनी समझो, राइट. बी क्या कर रहा है, अपना बिजनेस को सेल कर दे रहा, तो वो क्या हुआ, अपना ट्रांसफर कंपनी. एंड नाउ ए विल बी ट्रांसफरी कंपनी. हु इज दैट? बाइंग कंपनी, right? There are two terms called transferor and transferee. The one who is selling the company is transferor, the one who is buying that company is transferee, right? Now ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू द ट्रांसफरी कंपनी. तो पहले मर्जिंग में क्या करना पड़ता, पूरा एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है. किसको ट्रांसफर करना? बाइंग कंपनी को. बाइंग कौन? ट्रांसफरी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन मर्जिंग. देन शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन. नाउ जो भी शेयर होल्डर्स है जिसका भी 90% से ज़्यादा फेस वैल्यू है, दे विल ऑटोमेटिकली बी ए पार्ट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो. मतलब ट्रांसफरर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर उनका वैल्यू 90% से ज़्यादा है तो दे विल बी द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो. नाउ द थर्ड पॉइंट, the consideration for the amalgamation receivable by the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity shareholders in the transfer. Now the thing is same again, right? If you want to, suppose you think आप आपका कंपनी बेच दे रहे, आप उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हो. नाउ यू वांट टू कंटिन्यू, बेचने के बाद भी आपको कंटिन्यू करना है शेयर होल्डर से, तो क्या करता,
transferee company, what it will do, it will give you some consideration, right? So it will give its shares to you, its equity shares to you, so that you can be a shareholder in the transferee company also. Now, the business of transferor company is intended to be carried on after amalgamation, and this business will be continued, right? Transferor company का business कौन continue करता? Transferee continue करता. And then no adjustments to be made in the book value of assets and liabilities, or adjust, राइट. ट्रांसफरर कंपनी का बुक वैल्यू मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है. सो दीज आर द कंडीशंस विच शुड बी अप्लाइड. व्हाट आर दे? पहला, ट्रांसफ़र करना. क्या ट्रांसफ़र करना? असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना. बाद में क्या है? 90% से ज़्यादा जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाते. बाद में क्या है? अगर आपको ट्रांसफरी कंपनी में स्टिल कंटिन्यू करना है तो ट्रांसफरी कंपनी आपको कंसिडरेशन देता. कैसा? इक्विटी शेयर्स में कंसिडरेशन देता, मतलब पैसे की जगह पे इक्विटी शेयर्स देके आपको कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स रहने देता. एंड देन द बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन, मतलब बिजनेस को क्लोज नहीं करना है, मर्जिंग के बाद कंटिन्यू करना है, और बुक वैल्यू चेंज नहीं करना है. नो, व्हाट इज amalgamation in nature of purchase? If any one or more of the conditions are not satisfied, it is called amalgamation in nature of purchase. मर्जिंग में जो भी कंडीशंस है अगर वो एक भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो सिंपली क्या हुआ? परचेज में आ गया. पूरा ये 5 पॉइंट्स सेटिस्फाई हुआ तो मर्ज, नहीं हुआ तो वो किस में आ गया? अब परचेज में. For that we need to calculate purchase consideration, right? Purchase consideration, now you can call it as PC also, right? Purchase consideration is the amount which is paid by the transferee company for the purchase of business of transferor company. What is purchase consideration? The amount which is paid. समझो A purchased B, right? A is purchasing B. Now A is giving some 50 lakhs to B. That 50 lakhs should be considered as purchase consideration, the amount which is paid. And then ये कैलकुलेशन में भी हमको मेथड से क्या है? अपना पहला मेथड, लमसम मेथड. इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड. इन दिस कंसिडरेशन इज स्टेटेड एज लमसम, राइट? यू नो 50 lakhs बोले, 50 lakhs इमीडिएटली दे रहे, मतलब पूरा अमाउंट यू आर गिविंग इट वंस इन होल. इट शुड बी ट्रीटेड एज लमसम मेथड, मतलब कुछ भी कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये इतना वैल्यू बोले उतना वैल्यू आप डायरेक्टली पे कर दे रहे इमीडिएटली पूरा अमाउंट, तो वो क्या हुआ? अपना लमसम मेथड. एंड देन वी आर हैविंग नेट असेट्स और नेटवर्थ मेथड. नेट असेट्स मेथड, नाम में ही पता चल रहा, मतलब असेट्स के वैल्यू के ऊपर हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने वाले हैं. Now, the purchase consideration is ascertained by calculating net worth of assets taken over by the transferee company. कौन सा assets? Assets taken over by transferee company. Only those assets which are being taken over by transferee company. Now, you can see here agreed value of assets taken over. पहले क्या लेना? Agreed value of assets taken over less agreed value of liabilities taken over. Assets minus liabilities कह रहे तो क्या आता? अपना purchase consideration. क्या करना है? assets minus liabilities. लेकिन पूरा assets नहीं, taken over assets, only taken over assets. दो जो assets और liabilities transferee company ले रहा, बस उसका माइनस करने के बाद आपको purchase consideration आता. Now there are few points should be taken, right? Because not, मतलब बैलेंस शीट में जो भी assets है लिखते हैं, पूरा assets एक्चुअल assets नहीं है. देयर आर फिक्टिशियस assets ऑल्सो. उसको आप asset के जैसे ट्रीट नहीं करना. जैसे द टर्म ऑल assets इंक्लूड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, राइट? डज नॉट include fictitious assets such as profit and loss, preliminary expenses, discount of issue of shares and debenture holder. If you remember, हम assets पे लिखते हैं ना, like prepaid expenses, प्रॉफिट या लॉस आए तो लिखते हैं. क्या वो सब हमारा असेट्स है? नहीं. असेट्स आर प्रॉपर्टीज़. जो कंपनी का प्रॉपर्टीज़ है, जो स्टैंडर्ड है, बस उसको ही कंसिडर करना है. बाकी फिक्टिशियस असेट्स या प्रॉफिट और लॉसेस को कंसिडर नहीं करना है असेट्स में. एंड देन assets not taken over by purchasing company should not be added. Now, क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ assets taken over ही लेना, मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी ले रहा बस उसको ही लेना है, जो नहीं लेता उसको नहीं लेना, क्योंकि that assets we can sell. no, suppose you think लैंड बिल्डिंग है, लैंड को टेकन ओवर कर दिया कौन? ट्रांसफरी कंपनी. बिल्डिंग को नहीं लिए, मतलब बिल्डिंग हम ऐड नहीं करना, क्योंकि बिल्डिंग हम बाहर बेच के पैसे ला सकते हैं ना,
right? So assets not taken over should not be added. And then the term liabilities means all liabilities to the third parties. Remember this, third party liabilities are only liabilities such as ट्रेड लाइबिलिटीज़. ट्रेड लाइबिलिटीज़ में क्या है अपना ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और अदर लाइबिलिटीज सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर्स, टैक्स लाइबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर योर लाइबिलिटीज. थर्ड पार्टी मतलब क्या, जिसको हम पे करना है, कंपलसरी पे करना है, वो हुआ अपना थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को ही कंसिडर करना है. एंड देन इफ a fund or part of it denotes liability to the third party, it should be included in the liability, like provident fund, employee saving fund, workman profit saving fund. This also we can consider, these things also we can consider as liabilities. And then the term liabilities does not include past accumulated profit or reserves. now अब आपको याद है तो हम क्या करते, कैपिटल को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल को प्लस जर्नल रिजर्व प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कुछ ऐड करते ना, वो सब हमारा लाइबिलिटीज नहीं है, वो हमारा रिजर्व्स है, वो हमारा प्रॉफिट्स है, उसको ऐड नहीं है, लाइबिलिटीज के जैसे कंसिडर नहीं करना है एक्चुअल में. तो वैसा कुछ है तो उनको कंसिडर नहीं करना है. द टर्म लाइबिलिटी डज नॉट इंक्लूड पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स. And then if liability is not taken over by the transferee company, the same should not be considered while ascertaining purchase consideration. जैसे assets not taken over को consider नहीं कर रहे, वैसे ही liabilities not taken over को consider नहीं करना है. And then we are having net payments method. क्या क्या हुआ अब, लमसम मेथड. लमसम मेथड में क्या हो रहा, पूरा पैसे एक ही बार दे दिए तो वो लमसम मेथड हुआ. नेट एसेट में क्या हुआ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर रहे. कौन सा एसेट, सिर्फ और सिर्फ जो टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी. ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वी आर टेकिंग विच आर बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी. उसके बाद अपना थर्ड मेथड क्या है, नेट पेमेंट मेथड. सिंपल सी, द पेमेंट्स made in the form of shares and other securities and cash to the shareholders of the transferor company. मतलब whatever payment you are doing, you might be doing in the form of cash, you might be doing in the form of securities to the shareholders, that should be treated under net payments method. Simple it is, like you are making payment, you are making in the form of cash or shares, that is net payment method. And then we are having share exchange method. The transferee company issues its own shares to the shareholders of the transferor company. यहाँ पे क्या कर रहा कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी शेयर को क्या दे रहा, खुद का कंपनी का शेयर्स दे रहा. मतलब द ओल्ड एग्जाम्पल, ए इज परचेसिंग कंपनी ना, तो ए क्या कर रहा, बी के शेयर होल्डर्स को अपने कंपनी का शेयर्स दे रहा, पैसे नहीं दे रहे, कंपनी का शेयर्स दे रहा. मतलब ऑटोमेटिकली बी कंपनी में शेयर होल्डर्स ए कंपनी का भी शेयर होल्डर्स बन जाते. ये हुआ अपना शेयर एक्सचेंज मेथड, राइट. नाउ दैट इम्पॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन, राइट. journal entries in case of amalgamation in the books of transferor company. Whose transferor company? Selling company. In simply selling company. Now what is the first entry for transferring assets to realization? पहले क्या करना है, पूरा assets को ट्रांसफर करना है. कहाँ ट्रांसफर करना, रियलाइजेशन में. तब अपना एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वेरियस assets. सिंपली पूरा assets को लिखना है, उसका टोटल रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, right. So this is first journal entry for transferring assets to realization. Next क्या है, for transferring liabilities taken over by the purchasing company. purchasing company ऐसे liabilities को taken over कर रहा, उसका एंट्री लिखना है. एंट्री क्या है, each liability account debited or provision for doubtful accounts debited to realization. assets और liabilities का एंट्रीज देखो completely opposite है. यहाँ पर realization debit में आया और यहाँ पर realization credit में आया, right. सिंपली लाइक असेट्स रियलाइज करने के बाद पैसे आ रहे ना, नो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट एवर मनी वी गॉट वी आर ट्रांसफरिंग इन टू रियलाइजेशन. मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बढ़ रहा, राइट, इंक्रीज हो रहा उसका वैल्यू, तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, मनी इज कमिंग ऑन रियलाइजिंग असेट्स. कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो उसको, रियलाइजेशन में. सेम लाइबिलिटीज़ को, लाइबिलिटीज़ क्या हो रहा, लाइबिलिटीज़ को हम पे कर देते ना नॉर्मली, तो पे कर रहे तो क्या हो रहा, मनी इज गोइंग आउट. क्यों हो रहा, रियलाइजेशन. कैसे जा रहे पैसे बाहर, रियलाइजेशन अकाउंट में से जा रहे. ट्रांसफर कहाँ कर रहे, रियलाइजेशन को, इसीलिए इट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट फॉर परचेस कंसिडरेशन ड्यू, पहले क्या लिखना है, ड्यू एंट्री.
पैसे कहाँ से आना है हमको, ट्रांसफरी कंपनी से, ट्रांसफरी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, अभी तक पैसे नहीं आए इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। एंड देन फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन, नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज कंसिडरेशन आया, आए तो कैसे आते, या तो पैसे में आते नहीं तो शेयर्स में आते। Debit what comes in, what is coming in, money is coming in either in the form of cash or in the form of shares. From where, who is the giver, transferee company, who is the giver, transferee company, transferee कौन, अपना purchasing company है ना, अपना purchasing company, credit the giver, debit what comes in, what is coming in, money and shares, दोनों भी आ सकते हैं नहीं तो या एक, अगर दोनों आए तो ऐसा कॉम्पाउंड एंट्री लिख सकते हैं, अगर पैसे ही आ रहे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, सिर्फ शेयर आए तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, वैसे लिख सकते हैं। एंड देन फॉर सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, अभी बोले ना शेयर्स नॉट टेकन ओवर, आई मीन सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर, एसेट्स को टेकन ओवर करे तो ट्रांसफर कर दे रहे सीधा, कहाँ, रियलाइजेशन में। अगर कुछ असेट्स नहीं ले लिया ट्रांसफरी कंपनी तो क्या करना है, उसको बेच देना है, सेल करना है, सेल करे तो क्या आ रहे, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे तो कहाँ ट्रांसफर करना, रियलाइजेशन में, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, मनी इज कमिंग इन। एंड देन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये रियलाइजेशन के लिए पैसे होते हैं ना, मतलब रियलाइजेशन में क्या करें हम, रीवैल्यू कर रहे हैं असेट्स को, सेल कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, एक्सपेंसेस कैसे पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, व्हाट इज हैपनिंग, योर मनी इज गोइंग आउट, वाई, बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन। एंड देन फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, लाइबिलिटीज को पे करे तो फिर से पैसे बाहर जा रहे, क्यों जा रहे, अपने लाइबिलिटी की वजह से, गॉट। And then for the transfer of preference shares to preference shareholders, what you are doing, shareholders को transfer कर रहे, preference share capital account debited to preference shareholders account. In the same way you are transferring equity shares or accumulated profits, right, the same entry you can write a compound entry or you can write separately also. And then for transferring realization profit to equity shareholders, रियलाइजेशन के ऊपर अब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो क्या करना, मतलब ये पूरा रियलाइजेशन करें ना, थोड़ी जगह पे रियलाइजेशन क्रेडिट में है, इन सम केसेस रियलाइजेशन डेबिट में है, तो डिफरेंस अमाउंट तो आता, वो डिफरेंस को या फिर प्रॉफिट समझते नहीं तो लॉस समझते। प्रॉफिट आए तो क्या करना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना, लॉस आए तो भी शेयर ही करना है, लेकिन जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट आए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर लॉस आया तो क्या करना है, एंट्री को रिवर्स कर देना, मतलब ये जो एंट्री है उसको रिवर्स करना। फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब क्या करना है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देना ना, ये पूरा अकाउंट्स करने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स मनी शुड बी ट्रांसफर्ड। फॉर दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू शेयर्स, अगर पैसे दिए तो मनी इज गोइंग आउट, अगर शेयर्स दिए तो शेयर्स आर गोइंग आउट, किसके पास जा रहा, preference shareholders and equity shareholders, debit the receiver, credit what going out. So all these are the journal entries in the books of transferor company, in the books of selling company, right. If you write these journal entries, if you remember these journal entries, if they are asking in theory, writing journal entries is enough. If not, for problem also, these are common journal entries for all type of problems. Now on the other set we are having in the books of transferee company, transferee कौन, अपना selling company, sorry purchasing company, राइट, सेलिंग कंपनी का जर्नल एंट्रीज देख लिया, अब क्या करना है, ट्रांसफरी कंपनी का, तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी हो गया, अब purchasing company. See, there are two methods of accounting for amalgamation in the books of transferee company. What are those methods? Pooling of interest method and purchase method. तो पहले देखेंगे pooling of interest method. What is this? This method is applicable in the case of amalgamation, is in the nature of merging. Pooling of interest कब follow करते हम, जब वो merge में है. Purchase method when it is under purchase. राइट, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये फिर आपको डिफरेंसेस में पूछा, लॉन्ग डिफरेंसेस में पूछता, अगर शॉर्ट में पूछा तो सिर्फ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछता, देन यू कैन राइट इट इज़ फॉलोड इन नेचर ऑफ मर्जर. एंड ये मेथड में क्या करता मालूम, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग मेथड, दिस इज हिस्टोरिकल, मतलब
इट इज़ कंसर्न्ड विथ ओनली बुक वैल्यू, नॉट ऑन द फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? प्रेजेंट मार्केट प्राइस. सो दिस विल नॉट कंसिडर द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू. इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विथ हिस्टोरिकल, मतलब बुक वैल्यू जो जब हम खरीदे ना उस टाइम पे वैल्यू कितना है वही ही वैल्यू कंसिडर करता, अभी मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करता. कौन सा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. एंड देन असेट्स एंड लायबिलिटीज वेर कंबाइंड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. नाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट. समझो देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी, तो अब फिर से बैलेंस शीट करना पड़े तो क्या करते? लायबिलिटीज और असेट्स में कंबाइंड वैल्यूज ले लेते कि ना. सेपरेट बैलेंस शीट्स रहते, सेपरेट बैलेंस शीट्स को अब क्या करते? कंबाइंड बैलेंस शीट कर लेते. और इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू. नाउ लुक एट फ्यू journal entries again. So first journal entry on amalgamation. amalgamation मतलब क्या? merge पे journal entry क्या है? business purchase account debited to liquidator of transferor company, right? business purchase, right? Tell me if you remember what is the journal entry for goods purchased? purchase account debited. so normally purchase कर रहे तो purchases को debit में transfer करते. यहाँ पे भी वही हो रहा. क्या हो रहा? परचेसिंग कंपनी बिजनेस खरीद रहा. कहाँ से? ट्रांसफरर कंपनी का, राइट? ट्रांसफरर कंपनी डायरेक्टली नहीं बेचता. कैसे बेचता? लिक्विडेटर के हेल्प से, है ना. फर्स्ट यूनिट याद है तो लिक्विडेटर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु हेल्प टू वाइंड अप द कंपनी. द सेम वे लिक्विडेटर यहाँ पे क्या करता है? ट्रांसफरर कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी से रिवैल्यू करके उसको बेचने में हेल्प भी करता. तो ना business purchase account debited to liquidator of transferor company. And then for recording assets and liabilities taken over. assets और liabilities लिखना है. so sundry assets account debited, two sundry liabilities, two reserves, two business purchase, right? and if you could see the difference between debit and credits are adjusted in reserve. now ये reserves कहाँ से आया? assets तो पता है, लाइबिलिटीज भी पता है, बिजनेस परचेस ऑलरेडी यहाँ पे आ गया. ये रिजर्व क्या है? ये रिजर्व असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस अमाउंट है. असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस अमाउंट को रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है. एंड देन वी आर हैविंग फॉर मेकिंग पेमेंट्स. पेमेंट्स के लिए जर्नल एंट्री क्या है? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, राइट? डेबिट द रिसीवर. कौन रिसीव कर रहा है? ट्रांसफरर कंपनी का लिक्विडेटर. क्या है? तो पैसे लेता हमसे या फिर अपना शेयर्स या कुछ शेयर प्रीमियम. कभी कभी हम प्रीमियम पे भी देते शेयर्स, है ना. प्रीमियम पे दिया तो वो प्रीमियम का भी अलग अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. इसीलिए या तो पैसे, नहीं तो शेयर कैपिटल, नहीं तो शेयर प्रीमियम, राइट? तीनों भी रह सकते, नहीं तो एनी वन. सो अगर तीनों है तो कॉम्पाउंड एंट्री, अगर नहीं है तो एक लिख के छोड़ सकते. then for payment of liquidation expenses, goodwill account, general reserve account debited to bank account, right? liquidation expenses पे करना है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना है. कैसे करना? गुडविल अकाउंट, जनरल रिजर्व. लाइक पैसे कहाँ से लेने हैं? जनरल रिजर्व से. जनरल रिजर्व से मनी इज गोइंग आउट. वाई इट इज गोइंग आउट? फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. एंड देन फॉर अमालगमेशन एक्सपेंसेस अगेन द सेम. फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग मनी? वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम जनरल रिजर्व. का मतलब क्या है? अगर प्रॉफिट ज़्यादा आया, प्रॉफिट में से थोड़े पैसे हम बाजू में रखते हैं ना, उसको रिजर्व्स में. लाइक ये सिंपली हमारा सेविंग्स अकाउंट के जैसा समझो, क्या ना. सेविंग्स में से हम क्या कर रहे हैं? अब पैसे दे रहे. क्यों? अमालगमेशन एक्सपेंसेस के लिए. लिक्विडेशन या अमालगमेशन एक्सपेंसेस. तो आप क्या सिंपली क्या लिख सकते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. क्यों बैंक क्रेडिट में? क्योंकि पैसे जा रहे. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट? मनी इज गोइंग आउट, राइट? सो द जनरल रिजर्व टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी नेचर ऑफ मर्जर. अगर ये मर्जिंग में है, मतलब ये जर्नल एंट्रीज फॉलो करे, तो हमको जर्नल रिजर्व दिखाना ज़रूरी है. एंड नाउ द सेकेंड मेथड. क्या था सेकेंड मेथड अपना? परचेज मेथड. परचेज मेथड क्या है? हियर इट इज. दिस मेथड इज यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. इन नेचर ऑफ परचेज. मर्जिंग में है तो वो मेथड, अगर नहीं है तो परचेज में है तो ये मेथड फॉलो करना है. लुक एट द जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस परचेज करे तो एंट्री क्या है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. एंड इफ यू कुड सी बोथ जर्नल एंट्रीज आर सेम. यहाँ पे अमालगमेशन है, यहाँ पे परचेज ऑफ बिजनेस. यहाँ पे अमालगमेशन और यहाँ पे परचेज ऑफ बिजनेस, बट द जर्नल एंट्री इज सेम. कंपेयर करके पढ़े तो ईजी हो जाता. एंड देन नाउ फॉर रिकॉर्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, राइट? फॉर रिकॉर्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर क्या क्या लिखना है? वेरियस असेट्स टू वेरियस लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज. अगर रिजर्व कुछ आया तो रिजर्व्स में करना, राइट?
the same way, same as like here. Now there is a small note, see, if credit is more than debit, the difference is debited to goodwill. If debit is more than credit, the difference is credited to capital reserve. Now गुडविल क्रिएट करना या कैपिटल, यहाँ पे बोले ना हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही रिजर्व्स या गुडविल क्रिएट करना पड़ता, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट्स. अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो गुडविल आ जाता, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. नाउ फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेक्स्ट वन फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो अब क्या आता, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. मतलब वी आर गिविंग मनी इज गोइंग आउट, मे बी मनी और शेयर्स में भी इक्विटी है, प्रेफरेंस है और सिक्योरिटीज़ भी है. जो भी है कौन ले रहा है, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. सेम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया, फॉर मेकिंग ऑफ पेमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. नो इफ एनी लायबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी, तब क्या लिखना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक डिबेंचर्स, राइट. अगर कुछ लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी में डिस्चार्ज करने के लिए बोला तो क्या करना है, पे करना पड़ता, या तो कैपिटल में से पे करना पड़ता या डिबेंचर्स कुछ भी होने दो पे करना पड़ता. इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी देन गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, राइट. इन द सेम वे एक्सपेंसेस है तो कहाँ से पे करना है, गुडविल. यहाँ कैसे पे करें हम, जर्नल रिजर्व से, है ना, राइट. हियर ऑल्सो वी पेड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड अमेलगमेशन एक्सपेंसेस. कैसे पे करें, जर्नल रिजर्व से यूज़ करें. लेकिन यहाँ पे कैसे पे कर रहे हैं, गुडविल. यहाँ पे अमेलगमेशन एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि ये अमेलगमेशन नहीं है. व्हेन स्टैट्यूटरी रिजर्व इज मेंटेन, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व कुछ मेंटेन करे तो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट. एंड पंकज टेक्स्ट बुक में भी क्लियरली दिया हुआ है डिफरेंसेस और जर्नल एंट्रीज. इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस or else any other material which is available and easy to understand, but make sure that you compare and read things, right. From this unit there are 3 sets of journal entries. One set is for transferor company, right, the selling company, and the second set is for transferee company, that is a purchase company. और इसमें भी 2 मेथड्स है, क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेस मेथड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब होता, मर्जिंग में, मतलब अमेलगमेशन में होता, तो दीज आर द जर्नल इंटरेस्ट. नहीं तो कब होता, परचेज में होता. परचेज में हुआ तो क्या है, ये है अपना जर्नल एंट्रीज. सो ऑल द बेस्ट. इफ दे आर आस्किंग फॉर थियरी ऑल्सो, मेक श्योर दैट you attempt them. If it is for problem also, if you remember these journal entries, attempting a problem is also very easy.